Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope that you all are fine and safe at your home. Today is 5th of May 2021. Day is Wednesday and you are having your biology lesson with me. The chapter that we are reading these days is about unit number 4, cells and tissues. The topic that we will be doing in our today's biology lesson is cell membrane. But before we know something about the cell membrane, let us just revise that what we have studied in our previous lesson of biology about cell wall. So can you tell me, like, cell wall is present, where cell wall is located? Very good, Ibsham. Cell wall is located on outside of the plant cell. It is also present in some of the fungi and plant like prokaryotes. So it is confirmed that cell wall is present on the outermost side of the plasma membrane. And can you tell me, like, what it is made of? Very good. It is composed of different kind of chemicals. We have studied that it's having two layers, primary layer and secondary layer. Primary layer is made of cellulose and secondary layer is made of lignin. Okay. Then we have also studied that the other living organism like fungi, because it looks like a plant, so it's also having the cell wall. The cell wall of fungi is made of chitin. And the role and function of the cell wall is to provide support, protection, strength and shape to the internal material of the cell. This is what we have studied related to the cell wall. Now let's talk about the cell membrane. As you all know that cell membrane is also present in living organism, both in eukaryotic and prokaryotic cells. So सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी location की और where it is present and how does it looks. सबसे पहले बात करते हैं like how does it look. It is thin, elastic and it's covering the outermost membrane, outermost layer. अगर आप बोर्ड पे बनी हुई डायग्राम की तरफ गौर करो तो this is the cytoplasm. Whole thing is the cytoplasm and here it is present. It is thin and elastic. तो इसने इस पूरे साइटोप्लाज्म को कवर किया हुआ है. ओके. It is thin and elastic in nature and it is semi permeable. अब semi permeable का क्या मीनिंग होता है? Semi permeable का मीनिंग होता है that allow the entry of few of the molecule inside it and restrict the entry of some of the molecule. What I said कि ये अपनी सेल बॉडी के अंदर हर मॉलिक्यूल को एंटर होना अलाउ नहीं करती है. कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल के अंदर अलाउ करती है और कुछ नहीं करती. सेल की इस नेचर को, सेल मेम्ब्रेन की इस नेचर को हम सेमी परमिएबल कहते हैं. ठीक है. सो यू हैव टू कीप दिस कॉन्सेप्ट इन योर माइंड. सो अगर सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि इट मेंटेन्स द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ द सेल. सेमी परमिएबल नेचर होने की वजह से ये सेल का इंटरनल जो मैकेनिज्म है उसको मेंटेन करती है, उसकी कंपोजिशन को मेंटेन रखती है. मतलब कोई भी इररेलेवेंट चीज़ सेल के अंदर नहीं जाती और कोई भी एक्स्ट्रा जो लाइक रेलेवेंट चीज़ है दैट कैन नॉट कम आउट द सेल, वो सेल में से बाहर नहीं आती है. ठीक है. और इसके अलावा इट ऑल्सो सेंस द केमिकल मैसेजेस. ये केमिकल मैसेजेस को भी सेंस करती है जो सेल के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं. सेल के अंदर भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म चल रहा होता है, डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, तो ये उसमें केमिकल मैसेजेस को सेंस करती है और मैसेज कन्वे करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. ठीक है. और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी करती है. सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ बीइंग सेमी परमिएबल नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन. देन हम देखते हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या है. जैसे हमने सेल वॉल की कंपोजिशन देखी थी, बिल्कुल इसी तरह सेल मेम्ब्रेन की भी कंपोजिशन है. एंड इट इज़ मेड ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट. इट इज़ मेड ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट. अब प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से तो मिलकर बनी हुई है, लेकिन जो इसकी अरेंजमेंट है अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, इफ़ वी सी द सेल मेम्ब्रेन अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, इस सारी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास एक मॉडल बनता है जिसको हम फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कहते हैं. ठीक है. इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग एक शेप बनती है जिसको हम फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कहते हैं, लाइक अरेंजमेंट ऑफ दीज ऑल थिंग, प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट. तो इस
मॉडल के बारे में देखते हैं. इट इज़ कंपोज ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट. If you see from your book, page number 59, they have given the picture of that model on your book. I have also drawn it on the board. This is how this model looks like. अब आप देखो, इसमें प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं. अब इसकी अरेंजमेंट क्या है? It is having a layer of protein, actually two layers of protein, one on the upper side and other on the lower side. एक ऊपर वाली साइड पे है और एक नीचे वाली साइड पे है इसकी प्रोटीन की लेयर. दैट इज़ द रीज़न वी से इट्स लिपिड बाइलेयर. इस वजह से हम इसको लिपिड बाइलेयर कहते हैं. उसके बाद दीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इसके अंदर एम्बेडेड हैं, लिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड है. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड एम्बेडेड? एम्बेडेड का मीनिंग होता है कि किसी चीज़ के अंदर फिक्स होना. मतलब wait a second, if we consider these two books are the lipids layer. एक upper layer है और एक lower layer है. I'm having two books in my hand. So this is the upper layer and this is the lower layer. अब proteins के बारे में क्या करते हैं? Let's suppose that whatever I am having in, okay I got it. Let's consider this duster a protein molecule. इसको हम protein molecule consider कर रहे हैं. अब क्या होगा? ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है ये इसके अंदर एम्बेडेड है लाइक दिस. अपर और लोअर के दरमियान में ये फिक्स है. ऐसे भी हम कर सकते हैं और इसको ऐसे भी हम देख सकते हैं, राइट? सो दीज आर द टू लेयर्स ऑफ द प्रोटीन ऑफ द लिपिड्स. टू लेयर्स, वन ऑन द अपर साइड, अदर ऑन द लोअर साइड. और ये जो अंदर सेंटर में हमने रखा है, दिस इज द प्रोटीन दैट इज एम्बेडेड इनसाइड इट. इसके अंदर फिक्स हुआ हुआ है, ठीक है? सो दिस इज व्हाट दे हैव शोन यू. जो आप अभी डायग्राम देख रहे हो ये माइक्रोस्कोपिक स्टडीज के बाद आपको बता रहे हैं, ठीक है? So these are the lipid, this is also the lipid layer and these are the protein molecules. It's also having the carbohydrate inside it. इसके अंदर carbohydrate भी होते हैं. अगर हम इसकी external structure के बारे में देखें तो it's having some glycoprotein outside. Also it's having some glycolipid. इसकी outer structure में glycoprotein और glycolipids भी होते हैं, ठीक है? So this is the structure of the सेल मेम्ब्रेन. और इस अरेंजमेंट की वजह से हम इसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मेंट बाय फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, तो आप उसमें बताओगे द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट इन द सेल मेम्ब्रेन इज व्हाट वी से द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. आगे फर्दर उसके बारे में आप बताओगे हाउ इट इज़ अरेंज्ड. It is having two layers of lipid, one on the upper side, other on the lower side, and protein molecules are embedded inside it. ये देखें इसके अंदर embedded है ना, मतलब आधा इसके अंदर है, आधा इसके नीचे है और अंदर फिक्स हुआ हुआ है. और ये भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं. तो इस तरह somehow किसी तरह से फिक्स हुए होते हैं, ठीक है? So this is the fluid mosaic model that is present in cell membrane. Okay. ऑल्सो हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की बात की. तो जो यूकैरियोट सेल्स होते हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है? फ्लूइड व्हाट आई वाज सेइंग दैट यूकैरियोट सेल में फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ठीक है? नॉट इन द प्रोकैरियोट, जस्ट इन द यूकैरियोट्स. अब देखो जैसे हम स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो सेल है वो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज से मिलके बना होता है. ऑर्गेनेलीज आर द फर्दर पार्टीशन ऑफ द सेल. सेल के छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं, उसको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं, ठीक है? तो इसी तरह सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटर्स, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स. इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आपको नेम्स बता रही हूँ अभी. गोल्जी ऑपरेटर्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, दी माइटोकॉन्ड्रिया, दीज आर द ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन. ये सेल मेम्ब्रेन में होती है यूकैरियोटिक सेल्स में. और आपको पता है यूकैरियोटिक सेल्स आर दोज दैट आर हैविंग द ट्रू न्यूक्लियस इन देम. So this is all about the cell membrane that they have explained to you. I hope each and everything is clear to you. Let us just give a quick wrap up to our today's topic. In our today's biology lesson, we have studied that the cell membrane is thin in nature. थिन होती है, इलास्टिक होती है, एंड इट इज़ कवरिंग द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म को कवर कर रही है. ओके, इट इज़ सेमी परमिएबल इन नेचर. हु इज़ गोइंग टू टेल मी लाइक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेमी परमिएबल?
Arsh, I want you to explain. How you will be explaining? You already know the method that you have to comment with your name. That आप जो भी कोई आंसर करेंगे आपने अपना नेम बताना है और देन यू हैव टू राइट द आंसर. लाइक सेमी परमिएबल इज that allow the entry of few particles or molecule inside the cell and restrict the entry of other. कुछ को अपनी सेल के अंदर आने देती है और कुछ को नहीं आने देती. इस तरह की जो नेचर है, इस तरह का जो प्रोसेस मैकेनिज्म है, इसको हम सेमी परमिएबल कहते हैं. ठीक है. अब सेमी परमिएबल होने का बेनिफिट क्या है? बाय बीइंग सेमी परमिएबल इन नेचर इट मेंटेन्स द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ द सेल. सेल की जो इंटरनल कंपोजिशन होती है वो मेंटेन रहती है, उसको ख़राब नहीं होती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. ऑल्सो जो सेल के अंदर इंटरनल केमिकल मैसेजेस का स्प्रेड होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, दैट इज़ बीइंग हैंडल्ड बाय दिस सेल मेम्ब्रेन. वो सेल मेम्ब्रेन उसको देख रही होती है. Then we have studied the composition of the cell membrane. So who is going to tell me that cell membrane is made of which thing? Hassan, it's your turn. You have to tell that cell membrane is made of which things? Very good. It is made of protein, lipids and carbohydrates. Protein, lipid और carbohydrates से मिलकर बनी होती है. ठीक है. Okay, I have my third question from Arham. Arham, you have to tell कि अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सेल मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी जो अरेंजमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कोई नेम देते हैं. इट्स अ काइंड ऑफ अ मॉडल. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मॉडल? आई रिपीट माई क्वेश्चन. आई सेड कि जैसे हसन ने बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी है. जब हम सेल मेम्ब्रेन को माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करते हैं तो इट्स द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट गिव राइज टू अ मॉडल. कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द मॉडल कि उस मॉडल का नेम क्या है? वेरी वेल डन अरहम. फ्लूइड मोज़ैक मॉडल इज़ द नेम ऑफ दैट अरेंजमेंट. ठीक है. और जो कि आपके सामने बोर्ड पे बना हुआ है, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द मॉडल. इट्स हैविंग अपर लेयर ऑफ लिपिड, लोअर लेयर ऑफ लिपिड, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इनसाइड इट, देयर आर सम ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन इट ऑल्सो. और कार्बोहाइड्रेट्स भी जो हैं वो इसके अंदर ही एम्बेडेड होते हैं. ठीक है. और हमने ये देखा कि यूकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल होता है. ऑल्सो यूकैरियोट्स आर हैविंग द स्मॉलर ऑर्गेनेलीज जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी अपरेटस, इस तरह की चीज़ें होती हैं. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेल मेम्ब्रेन. नाउ व्हाट यू पीपल आर सपोज टू डू आफ्टर वॉचिंग द वीडियो एंड गेनिंग द कॉन्सेप्ट, आपने अपनी बुक ओपन करनी है, पेज नंबर 58 एंड 59. यू हैव टू गो थ्रू द रीडिंग, ईच एंड एवरी लाइन यू हैव टू गो थ्रू, और फिर आपने इसको रिलेट करना है कि व्हाट आई एम सेइंग टू यू, इज़ इट रिलेटेबल टू द टेक्स्ट दैट दे हैव रिटन ऑन द बुक. अगर उसके बाद भी आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप और यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन द वीडियो लिंक डाउन बिलो. आप इसमें वीडियो लिंक में भी मेंशन कर सकते हैं. आई विल सी एंड आई विल रिप्लाई यू देयर. ओके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेल मेम्ब्रेन. वी आर डन विद द सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल. आई फाउंड देम वेरी इंटरेस्टिंग. जब आप इसको पॉइंट्स में याद करते हो तो इट बिकम वेरी ईजी. आप सिर्फ ये याद रखो, हेडिंग्स बनाओ अपने. हेडिंग्स में क्या होगा? सबसे पहले आप बताओगे वेयर इट इज़ लोकेटेड, उसकी लोकेशन क्या है. देन यू विल बी सेइंग हाउ डज इट लुक्स लाइक, उस नज़र कैसे आती है, उसका टेक्सचर क्या है. फिर आप बताओगे कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इट, उसका रोल क्या है. देन यू विल बी सेइंग कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या है. दीज आर द 4 मेजर पॉइंट्स जो आपने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों में याद रखने. जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप याद करते हो, इट बिकम वेरी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके. सो this is all about the cell membrane. Our next topic will be related to the cytoplasm. So our next topic is about the cytoplasm. साइटोप्लाज्म के बारे में मैंने आपको साथ साथ बताया था जब हम सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में बात कर रहे थे. आई टोल्ड यू दैट each cell is having its outer membrane, either it's a cell wall or it's a cell membrane. उसकी एक outermost layer होती है. Let's suppose this is the outermost layer of a plant, animal cell. ये animal cell की जो outermost layer है, can you tell me what we say it? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम outermost layer को क्या कहते हैं? We call it cell membrane. ठीक है. अब cell membrane और इसके अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज होते हैं जैसे कि न्यूक्लियस,
Golgi operators, ribosomes, centrioles, mitochondria. So these are the things that are present inside the cell. अभी फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ न्यूक्लियस को इंक्लूड करते हैं, बाकी चीज़ें मैं थोड़ी देर तक ड्रॉ करती हूँ. आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक ये जो सेंटर में जो स्पेस है, इसमें हमारे पास कुछ सेमी विस्कस और लिक्विडी मटेरियल होता है. सेमी ट्रांसपेरेंट सेमी विस्कस मटेरियल होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. आई रिपीट, आई सेड कि किसी भी सेल में, या फिर प्लांट सेल या एनिमल सेल, अभी हम एनिमल सेल की एग्जांपल ले रहे हैं, प्लांट सेल में भी ऐसा ही होता है. आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस तक ये जो बीच में सारी चीज़ है, इसमें कुछ सेमी विस्कस या फिर सेमी ट्रांसपेरेंट कुछ मटेरियल होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं. लाइक ये जो मैं डॉट्स बना रही हूँ, इनको हम राइबोसोम्स कहते हैं. ये जो मैं इस तरह की शेप बना रही हूँ, इसको हम सेंट्रियोल्स कहते हैं. दिस इज़ व्हाट आई एम ड्राइंग, इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं. ये जो मैं अभी शेप बना रही हूँ, इसको हम गोल्जी ऑपरेटर्स कहते हैं. सॉरी, इसको गोल्जी ऑपरेटर्स कहते हैं, इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं. ठीक है. और इस तरह और कुछ भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीज़ें पड़ी होती हैं सेल के अंदर. तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आई रिपीट, कि सेल के अंदर जितनी भी इंटरनल मटेरियल होता है, अगर हम इसको सेपरेटली करें तो ये ऑर्गेनेलीज होती हैं. लाइक सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटर्स, न्यूक्लियस एंड राइबोसोम्स, दीज ऑल आर द ऑर्गेनेलीज. इन ऑर्गेनेलीज से मिलकर एक कंप्लीट सेल बनता है जिसको हम एनिमल सेल कह रहे हैं. ठीक है. अब साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक इंटरनल जो मटेरियल होता है, जो क्या है, सेमी विस्कस है या फिर सेमी ट्रांसपेरेंट है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. अब साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, आपको इसकी लोकेशन तो पता चल गई. अब हम देखते हैं कि इसके बेनिफिट क्या है. लाइक व्हाट डज इट डू? सो ग्रेड 9, इट हेल्प्स टू प्रोवाइड द स्पेस फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनेली. अब इस हर ऑर्गेनेली का भी अपना अपना कोई काम होता है. दे आर वर्किंग, वट एवर दे आर वर्किंग, उसको स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं साइटोप्लाज्म. अगर लेट सपोज साइटोप्लाज्म नहीं होता तो ये ऑर्गेनेलीज काम कहाँ कर रहे होते हैं. ठीक है. सो बेसिकली इट प्रोवाइड द स्पेस फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ईच ऑर्गेनेली. जैसे कि एग्जाम्पल में और कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं जिसको हम साइंस में बायोकेमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं. ठीक है. ऑब्वियसली यू आर टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में जो रिएक्शन होंगे उनको बायोकेमिकल्स कहेंगे, या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं. वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी इसी के अंदर हो रहे होते हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल आपके बुक में दी हुई है जिसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं. आई एम राइटिंग इट हेयर, ग्लाइकोलिसिस. अच्छा, अब इसमें एक और बात आपने अंडरस्टैंड करनी है. ग्लाइकोलिसिस वर्ड में लाइसिस का मीनिंग जहाँ कहीं भी यूज़ होता है, आइदर इन केमिस्ट्री और इन फिजिक्स, लाइसिस का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन, टूट जाना किसी चीज़ का. ओके. ऑलवेज कीप दैट थिंग्स इन योर माइंड. ये छोटी छोटी सी टर्म्स अपने माइंड में रखा करो, फिर जब कभी ये वर्ड्स यूज़ होते हैं तो यू विल गेट टू नो. जैसे हमने लिपिड बाय लेयर में, बाय का मीनिंग था टू, लाइक टू लेयर्स ऑफ द लिपिड. ग्लाइकोलिसिस का मीनिंग है, ग्लाइकोलिसिस इज समथिंग फ्रॉम द ग्लूकोज. लाइसिस का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन. सो ग्लाइकोलिसिस विल बी द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज. ठीक है. अब ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस एक केमिकल रिएक्शन है जो सेल के अंदर हो रहा होता है. इसमें होता क्या है कि ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है जब सेलुलर रेस्पायरेशन होती है. सेलुलर रेस्पायरेशन हम किसे कहते हैं? रेस्पायरेशन का मतलब आपको पता है, लाइक एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट. जब ये सेल्स में हो रही है तो हम इसको सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं. ठीक है. और ये सेलुलर रेस्पायरेशन साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही होती है, जिसमें ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा होता है उसका. ठीक है. दिस इज व्हाट दे हैव एक्सप्लेन टू यू. ऑल्सो दे आर टेलिंग यू दैट देर आर सम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म. जब हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो हम इसमें आ जाएंगे लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. अभी आपने लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से है. तो ये सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं. अगर सेल मेम्ब्रेन में है तो ऑब्वियसली सेल के अंदर भी होंगे. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द साइटोप्लाज्म. I have also written the points of cytoplasm on the board that it is semi-viscous. Semi-viscous का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होना, नॉर्मल सा, मॉडरेट सा. ठीक है.
सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है और बिल्कुल लाइक न्यूट्रल भी नहीं है, इन बिटवीन है कि लाइक ट्रांसपेरेंट है भी है और नहीं भी है. देन इट इज़ वेयर इट इज़ लोकेटेड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियस, इन बिटवीन द प्लेस इट इज़ प्रेजेंट. ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे इसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसमें लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं दैट ऑल आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म. देन सम बायोकेमिकल रिएक्शंस आर हैपनिंग इन इट जिसमें हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के बारे में है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू हैव टू लर्न द concept, you have to gain the concept and then learn the topic, and then you have to draw the diagram of fluid mosaic model and cytoplasm on your biology notebook and then send the work on Google Classroom. If you find any difficulty, you